post-match presentation for the HPL 2025. Congratulations to both teams putting on grand spectacles. You both had a great run. You entertained all fans throughout this tournament. Proud again and again. On the behalf of Husangam Cricket Club, I will like to thank the hosts, the players, and finally the fans for putting on great event. The Husangam Cricket Club would also like to thank all the supporters throughout this tournament and also this entire season. I would also like to take this opportunity to thank all our fans for the continuing support throughout 2025 season. I appreciate your support and concern more the words can express. Thank you for being there are me doing this challenging time. Your support is also being a to gift this year. We will delight to welcome our back Husangam Cricket Stadium and thankful once again for your unshakable support and love. Before you being, it is my pleasure to introduce our presentation party. I will first introduce our special guest, Mr. Ejaz Ahmad Khan, DDC Kulel. Now I will introduce our chief guest, Mr. Major Aman 51 Aura, Mr. Wamik 51 Aura, Mr. Captain Mihul 51 Aura. Will invite the match officials to umpires, Mr. Khalid Hussain Lon, Mr. Ibrahim Lon. Please come on to collect gifts from Mr. Captain Muhul sir. For the first award in this tournament, I will invite Mr. Major Aman to present Power Striker Player of the Match Award. There was notable performance in this game, but it was one man who stole the show with ball, Mr. Sajidur Rahman, Player of the Match. Please come on and collect the trophy from Mr. Aman. Now I will like to invite Mr. Major Wanik to present the player of the tournament for his outstanding performance throughout this tournament for being most consistent bowler or batting. Player of tournament, Mr. Hanifur Rahman. Please come on and collect player of the tournament trophy from Mr. Major Wanik. हनीपुर रहमान प्लीज कम टू चेक अस। हनीपुर रहमान पहले आपको मुबारक है कि आपने ये ट्रॉफी लिफ्ट की। आज काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इस टूर्नामेंट में, चाहे बैटिंग से हो बॉलिंग, और सबसे बेहतरीन जो है आपका अंगाईकोट की टीम में होना स्ट्रेटजी। आप हर वक्त ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हो कि अपोनेंट जो है वो धराशायी रह जाती है। तो आज जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी गेम से पहले वो क्या थी, और उसके बाद जीतने के बाद आप कितने खुश हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज आई। प्लेयर पूरे एतमाद थे हमारे कि हम इंशाल्लाह ये मैच जीत सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये थी कि हमारा एक बॉलर आज पहले से शॉट था, तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमारे जो कीपर थे वो तो ये दूसरी मैच में बॉलिंग की, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही कीपिंग करता हूँ, तो इसके वो पहले 3 ओवर निकालते हैं। क्योंकि हुसैनगाम की टीम पहले ही ओवर में अंडर प्रेशर आई थी, तो हमने यही सोचा कि जल्दी से जल्दी इसके 3 ओवर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 ओवर ही में हमारी टीम ने कमबैक करने ही नहीं दिया उनको। हनी भाई, आप मुझे बताइए, साजिदुर रहमान ने जो सिफल डाली तो वो गेम टर्निंग थी, तो उसके बारे में क्या बताने चाहिए? आपने पहले तय किया था कि अगर हम
गेम में कहीं फंस जाते हैं तो साजिदुर रहमान जो कि गोल्डन आर्म माना जाता है हर एक टूर्नामेंट में मैंने देखा है, तो उसकी ओर जाएं या गेम के दौरान ही आपने यह सोचा कि हम ये ओवर साइज से निकलवाएं, हो सकता है एक दो विकेट मिल जाए जिससे हुसैन गाम की टीम प्रेशर में है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले टूर्नामेंट में पिछले साल के हमारा जो फाइनल था वो गुजरान के साथ था, 72 रन पर हम डेर हो गए थे, तो उनका गोल्डन आर्म ने हमें बैक टू बैक 3 विकेट आए, तो इसकी वजह से मैच जीते। आज भी उस मैच में भी ये मैन ऑफ द मैच थे, आज भी हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी पहले से ये थी कि हुसैन गाम को अंडर प्रेशर किया जाए, वहाँ पर भी प्लेयर बहुत अच्छे थे, मेराज भाई खासकर हमने सोचा कि वो आने तक उनको अंडर प्रेशर किया जाए ताकि वो गलत शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाए, वैसा ही हुआ। शुक्रिया। Now I want to invite Mr. Raja Ejaz to present best batsman or best bowler in this tournament. Hanifur Rahman, please come and to collect gift from Ejaz Ahmad, Raja Ejaz Ahmad Khan. And also come man of the match. Sajidur Rahman, please come and to collect man of the match through Raja Ejaz Ahmad Khan. Moving forward, now I would invite Mr. Quyum to present emerging player of this tournament. Ejaz Lon, Malengam, please come and to collect emerging player of tournament. Ejaz Lon, Team Malengam. Team Malengam. Now I would invite Mr. Ali Muhammad Lon to present best batsman of this tournament. Tariq Aziz, please come and to collect best batsman award. Now I would like to invite Quyum Lon to present best bowler of this tournament. Mehraj Lon, please come and to collect best bowler award of this tournament. Now I would like to invite Mr. Major Aman to present medalist to runner-up team in this tournament. Hussain Gam, may I invite runner-up team to collect medals from Mr. Major Aman. Please come on one by one. Mushtaq, Lon Abrar, Ashaq Hussain, Lon Azhar, Abu Bakr, Dil Nawaz, Captain Mehraj Lon, Tariq Aziz, Nadeem Rubani, Lon Huzair, Saeed Munwar, Now I would like Ejaz Khan to present medalist to winner-up team in this tournament. May I invite winner-up team Future Stars and I go medalist from Mr. Raja Ejaz. Please come on one by one. Rafiq Khan, Hanif Lon, Sajid Lon, Zamir Khan, Mukhtiar Khan, Khuda Shamasdeen, Habibullah, Arfin Khan, Hayaz Khan, Nurdin Khan, Khalid Khan.
Now I will invite Raja Ejaz to present best commentator of this tournament. Feroz Lon to collect medal from Raja Ejaz Khan. And then scorer Liaquat Ali. Suhail Lon. Suhail Lon. Liaquat Ali. And commentator Imtiaz. Youngest player Sahil Ghaffar. It was a fantastic match from start to finish, and the effort from both sides was tremendous. Could we please invite the captain of our runner-up team, Mr. Miraj, to come on up and share some thought with us. Miraj, please come on. हार्ड लक फॉर मेराज आपके लिए आज हार्ड लक रही, क्योंकि इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम जो थी वो आपको समझी जाती थी, लेकिन आपकी प्लानिंग में आज थोड़ी चेंजेस नजर आई, जिसकी वजह से पूरी पारी में आपकी बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे गेंद से हो, फील्डिंग से हो या बल्ले से हो। लेकिन आज काफी उदास चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे तमशाई की बात की जाए या प्लेयर्स की। इसके पीछे वजह क्या है? शॉट सिलेक्शन गलत था या पिच में कुछ ऐसा था कि आपकी बैटिंग लड़खड़ाती हुई नजर आई? बिल्कुल, हमने जो प्लान एग्जीक्यूट किए थे उसमें हमारी टीम खड़ी नहीं उतरी। जी हाँ, हमारे जो मिस्टर बोया अच्छे प्लेयर थे ऑलराउंडर, उसकी कमी हमें बहुत महसूस हुई। जहाँ तक बात की जाए हमें बैटिंग लाइन की, फर्स्ट पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद प्रेशर थे हमारी टीम पे, कुछ खास नहीं कर पाए। हमारी बैट कुछ खास नहीं कर पाए। बॉलिंग पे तो आपको पता ही है कि 66 रन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंशाल्लाह हम अगले टूर्नामेंट में कम बैक करेंगे। बहुत ही अच्छी खेली अंगाजी कोर्ट की टीम। अच्छा, मेरा अंगाईकोट की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में। उसका दबाव था या आपकी जो बैटिंग थी उसमें कुछ गड़बड़ हुआ? आपने प्लेयर्स को आज जो ओपनिंग खेल रहा था उसको 4 पे डाला, जो 4 पे खेल रहा था उसको ओपनिंग में डाला। ये बॉलिंग का प्रेशर था अंगाईकोट की टीम का या आपकी स्ट्रेटजी थी ABC कि हम इस स्ट्रेटजी के साथ खेलेंगे? हदफ क्या समझा था? सुबह सुबह आपके जहन में क्या आया था कि कौन सा हदफ हम इनके सामने रखेंगे जिसको चेस करने में काफी दिक्कत होगी अंगाईकोट की टीम? यहाँ मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि 120 प्लस अगर स्कोर होता तो उसको डिफेंड करना बहुत ही अच्छा। बॉलिंग कुछ खास नहीं थी, लेकिन हमारे जो प्लेन हमने एक्सिक्यूट कर हमारी टीम खड़ी उतरी। उसमें हमारे बैटिंग जो है वो पहले से ही लड़खड़ाई थी। उसमें बात और एक पिच में भी आज जो बॉलिंग की थी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी नीची रही गेंद, ज़्यादातर नीची रही गेंद, उसमें उसको बैट को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। शुक्रिया मेराज भाई कीमती वक्त निकालने के लिए। मैं इनवाइट टू मिस्टर मेजर अमन प्रेजेंट runner up trophy to the losing side of this contest. I will invite runner up team captain Mr. Merazon to collect cash award of 5,000 and runner up trophy from Mr. Major Aman. What a phenomenal performance from team Future Stars Angaikot. A huge congratulations and welcome to the captain of Future Stars Angaikot. Please come on forward for a quick chat with us. Rafiq, please come on. रफीक, सबसे पहले आपके लिए कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि लगातार ये दूसरा टूर्नामेंट है जो कि आपकी टीम जीत रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, पहले हमें ये बताइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है मिस्टर नवाज और इसकी कंपनी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक अच्छा हमें ये मतलब अपनी टैलेंट प्रूव करने का मौका दिया था और जिस तरह से उन्होंने ये टूर्नामेंट चलाया, एक बार मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे जो चीफ गेस्ट्स थे उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने अपना जो वैल्यूएबल टाइम है हमारे बीच गुजारा। तो जैसे आपने बात की, रिदम हमारा पहले से अच्छा था, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, जो नया टैलेंट है हमारे गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जो रिदम पहले से ही था उसी पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो जो प्लान हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे रिगार्डिंग जो बनाते हैं वही हमारे साथ ही होता है। तो रफीक भाई, आज की जो आपने जो मैच जीता उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा आप किसको देना चाहते हैं अपनी टीम? देखिए कि किसी एक पर्सन को नहीं, पूरी टीम को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरी तरफ से है, एक हमारा ये अनएक्सपेक्टेड बॉलर था। मैंने सोचा था कि ये अपने ओवर निकालेगा, लेकिन उसने अपने गोल्डन आर्म से जो 3 विकेट लिए, मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। तो मुझे लगता है मैं अपना क्रेडिट साजिदुर रहमान को ही दे दूँगा। शुक्रिया रफीक भाई। Congratulations to winner of team Future Stars Sangaikot. They showed outstanding performance throughout the tournament. Now I would like to invite our special guest on stage, being with a warm welcome to the fans. Formally invite them to the stage with their respect. Mr. Raja Ejaz, please come on stage to present winner of trophy. May I invite to winner of team captain to collect winner of trophy. Please come on. And 15,000 cash award. Winner of team captain, please come on to collect trophy and cash award of 15,000. On the behalf of Hussaingam Cricket Club, it is my pleasure to welcome our esteemed chief guest, Mr. Raja Ejaz. We are deeply honored by your presence, which adds great value of our event. Thank you for accepting our invitation and sharing your time with us. Please come on and share some chat with us. Raja Ejaz Khan. जब भी यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे हुसैनगाम में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो क्राउड है उसकी एनर्जी देखकर बहुत मज़ा आता है। और जहाँ तक आज की विनिंग टीम का ताल्लुक है अंगाईकोट का और मेरा एक अलग संबंध बन चुका है। जब भी मैं कहीं पे गेस्ट होता हूँ, चीफ गेस्ट होता हूँ, वहाँ पे अंगाईकोट की टीम जीत जाती है। लास्ट टाइम पे जब मैं फाइनल में गुजरान के साथ इनका मुकाबला था, शायद उस दिन भी यही अंगाईकोट जीते थे। तो मेरी तरफ से दिल से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह खेलते रहिए, सबके दिल जीतते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारा सपोर्ट हर वक्त हमेशा आप सबके साथ है। आज मेरे साथ 51 RR के हमारे कुछ साथी, कुछ अफसर साहिबान हमारे मौजूद रहे, मैं इनका दिल से मशकूर हूँ। देखिए, सपोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो जिसको लेकर हमें बहुत आगे बढ़ना है, खासकर इस तिलेल इलाके में। तिलेल इलाके में पहले बहुत कम देखा जाता था कि इस तरीके से हमारे नौजवान आगे आके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। आजकल हमारा नौजवान परेशान है, दुखी है, दूसरे जगहों में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ का हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत आगे बढ़ चुका है, तालीम में भी अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट्स में भी अपना नाम कमा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि हम एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने स्टेट को फिर नेशनल लेवल पे भी जाना चाहते हैं। ये सोच मैं अपने नौजवानों में देखना चाहता हूँ और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, अगर आप इसी तरीके से खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने यहाँ के नौजवानों को हम नेशनल लेवल पे देख सकें। कम से कम देखिए, सोच बड़ी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर हम अपनी सोच को महदूद रखेंगे कि नहीं हमें यहाँ बस यहीं इर्द गिर्द रहना है, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सोचोगे कि हमें हाँ जी हम नेशनल लेवल पे जाना है, तो इंशाल्लाह अगर वहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन स्टेट लेवल आप जरूर रिप्रेजेंट करोगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है, जज्बे की कोई कमी नहीं है। फिजिकली तो हमारे नौजवान फिट रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है। हमारा जो इलाका है, यहाँ के जो नौजवानों में जो एनर्जी होती है, जो जज्बा होता है, वो नेचुरली है। तो इसी को लेके आगे बढ़ना है मेरे साथियों। खेलकूद हमें ड्रग्स से दूर रखता है, बुराई से दूर रखता है। खेलकूद में अपना टाइम बिताइए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए सुबह शाम। कहीं कहीं अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे अगर कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है वो भी लीजिए। इसी तरह आप हमें एंटरटेन करते रहें, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे। जिस किसी भी चीज की जरूरत हो, अभी भी हम बात कर रहे थे, हमारे वीडियो साहब भी यहाँ पे आए थे, कुछ और साथी, हम आपको यहाँ पे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेटर कर सकें। इंशाल्लाह मैं पहले भी वादा बंद हूँ आपसे कि यहाँ पे आपको और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आपको खेलने का सामान हमने पहले भी प्रोवाइड किया है, आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी तरह से आप खेलते रहे, एंजॉय करते रहे, अपना भी मुस्तकबिल बनाएं और यहाँ के इस इलाके का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया डीडीसी राजा एजाज। तो मेरी मुतबाना गुजारिश है डीडीसी राजा एजाज से, जो इंस्ट्रूमेंट खेल के लिए लग रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं। पूरे सब अगर गेम मैच में देखें तो टीम में 2 या 3 प्लेयर हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सर उसी इंस्ट्रूमेंट से खेलते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। पेड़ एक प्लेयर बांध के जाता है, दूसरा इंतजार करता है वो आउट होकर आए तो मैं बांधूं। तो जितना हो सके, जितनी भी टीमों ने यहाँ शिरकत की है, चाहे वो मलंगाम से हो, बड़वाब से हो, गुजरात से हो, उनके लिए कम से कम किट बैग एक हर टीम के लिए किट बैग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने फंड से। और दूसरा, आपने खुद देखा इस ग्राउंड की हालत क्या है, इसका मेंटेनेंस कम से कम क्लेल इलाके में ऐसे 2 ग्राउंड हो जिसकी मेंटेनेंस बराबर हो, जिसमें बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो। और उसके बाद हमें अगर कहीं अरेंज करना होगा फाइनल, तो हमें आर्मी से मदद लेनी पड़ती है। शुक्रगुजार है हम 51 RR के, जिन्होंने ये इंतजाम किया, चाहे यहाँ हो, बड़वाब में हो। जब तक आर्मी सपोर्ट न करेगी तो हमारा कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें एक भी टूर्नामेंट, क्या शादी हम मुकम्मल कर सके। शादी के लिए भी उन्हीं से टेंट का अरेंजमेंट, चेयर का अरेंजमेंट, अच्छा टूर्नामेंट होगा उसके लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए हम वहाँ पर जाते हैं और कभी हमें इनकार नहीं किया है। तो इसलिए हम डीडीसी से गुजारिश करते हैं जितना भी हो सके अपने फंड से किट बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करें। और कम से कम 2 या 3 जो ग्राउंड है, बड़ूगाम मालनगाम में है, बड़वाब में है, ये हुसैनगाम का है, कम से कम 2 ऐसे ग्राउंड मेंटेन करके रखे जो तमशाई आ रहे हैं उनको भी देखने के लिए मजा आए। नॉट लीस्ट एट लास्ट, आई विल इनवाइट मिस्टर मेजर अमन, प्लीज कम ऑन stage and share your thoughts with us, audience, beautiful audience, players and us. Please come on and share your thoughts. थैंक यू सो मच। आज का जो मैच है, पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ इस प्रकार का टैलेंट देख के। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दोनों टीमों ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और हम आपस में, मेरे बाकी साहब लोग हैं, मेजर वॉमिक साहब और कैप्टन मेहुल साहब, इन लोगों के साथ भी मैं डिस्कस कर रहा था कि इस प्रकार का टैलेंट, इस लेवल का टैलेंट हमारे बीच में है और हमें पता भी नहीं था इस चीज़ का। तो हम ये कोशिश करेंगे कि और भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सीओ साहब से दरख्वास्त करेंगे, और आप सब लोगों के साथ भी हम खेलना पसंद करेंगे तो उसका भी हम प्लान कर सकते हैं। और बाकी ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही ऊंचे दर्जे का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।
मुझे पता चला आपको RDX भाई के नाम से जाना जाता है, तो RDX भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। और जो टीम सेकंड आई है, आपका दिख रहा था पूरे टूर्नामेंट में कि आप फाइनल कैसे पहुंचे हो। आपके अंदर वो टैलेंट है, प्रतिभा है। कुछ होता है फाइनल में, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, हर बार अपने साथ नहीं होती हैं चीज़ें, बट आप में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, टैलेंट है, जो कि ग्राउंड में भी दिख रहा था। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और होपफुली आप में से कोई चेहरे मुझे टीवी पे देखें जल्द ही इंडिया टीम के कलर्स में, होपफुली। ठीक है, बहुत बढ़िया टैलेंट आप में। मेरे साथ 2 ऑफिसर आई हैं, मैं 2 लाइन अगर वो भी डेडिकेट करना चाहें, है ना, तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर दूंगा, मेजर भौमिक एंड मेहुल। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप सबके बीच आकर ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखना। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो हसन गांव अंगई कोट के फैंस आए हुए हैं, उनको देख के और भी बहुत अच्छा लगा कि गांव वालों के बीच में एक इतना अच्छा माहौल है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्रिकेट वगैरह, ये इसी से थोड़ा मतलब आपसी में बना रहता है, है ना। और ये बहुत अच्छा कल्चर है, इसको डेवलप कीजिए। और ठीक है, और मैं यहाँ अभी जितने भी आगे टाइम में हूँ तो देखना चाहूँगा कि यहाँ पे और मैचेस हो रहे हैं और ये चीज़ आगे बढ़ रही है। पहले दोनों टीम्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत अच्छा खेला संगम में, पर हार्ड लक आप लोग नहीं जीत पाए। बट अंगाई कोर्ट में तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी आज। ठीक है, बाकी ऐसे मैचेस और होते रहने चाहिए। आप लोग आइए कभी, हम लोग भी अपनी बटालियन में आप लोगों के साथ एक मैच खेलते हैं, हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। बाकी ऐसे इवेंट्स करवाते रहिए, कंटिन्यूसली करवाते रहेंगे, तो इससे आप सब लोग गाँव में आपकी दोस्ती बनी रहेगी और आपको मजा आता रहेगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि सारे लोग साथ में आ पाते हैं इसकी वजह से। बाकी ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। मेराज लोन काफ़ी समय निकाला यहाँ पर इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। उसके बाद 51 RR के जितने भी मेजर लोग यहाँ पर मौजूद हुए, अपना कीमती समय निकाला। हमारा वक्त क्या है, हम खेल कूद में दिन गुजार लेते हैं, इनका वक्त जो होता है वो कीमती होता है। अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। DDC राजा एजाज, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, इस फाइनल को सरे अंजाम तक पहुँचाया। उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं हम। और लास्ट में मैं मेजर अमन सर से एक गुजारिश करता हूँ, मलंगाम ग्राउंड में, वो खूबसूरत ग्राउंड है, क्लियर का सबसे पहला ग्राउंड वही है, तो वहाँ पर फेंस लगी है बीच में से, तो हम वहाँ पर भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, तो बाल जो है वो फेंस में जाकर फंसती है, तो निकालना काफ़ी दिक्कत होता है। और CO साहब से बात करके अगर उसको थोड़ा पीछे 5-6 फुट अगर वो पीछे ले जाएँ तो उनका काफ़ी शुक्रगुजार रहेंगे हम उम्र भर के लिए। तो हमारी ये मोतबाना गुजारिश है, तो CO साहब से बात करें। बाकी मुबारकबाद है अंगाई कोट को जिन्होंने इस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। और नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक हुसैन गाम के लिए, क्योंकि हार्ट छोटा नहीं करना है। गेम क्या है, 2 सिक्के हैं, एक सिक्कों का 2 पहले हैं, एक चिट एक होता है पट, एक साइड चिट आएगा, एक साइड पट है, एक टीम हारेगी एक जीतेगी, तो इसमें दिल छोटा नहीं करना है। 40 टीमों में से आप यहाँ तक पहुंचे, यही बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जिन चीज़ों में आपने आज जिन चीज़ों की कमी आपको महसूस हुई, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो, उस पर इम्प्रूवमेंट करें, उस पर काम करें, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप भी जीत सकते हैं। तो बाकी मेरी तरफ से सबको सलाम, बाकी शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं फिर हम दिखाएगा ब्रॉडकास्ट को किस तरह बोलते हैं हम दिखाएंगे। ला
ला विनिंग एक मिनट ला ला रटवा असं माहिती रटवला आज भाई जुबी भाई आमचा सर जुबी आठ जुबी बेरको सच्ची सर विनिंग माउंट जुबी बस एक काल कागोड फोटो सेशन लाइक उंडा ला हल्ला हो नहीं रहा यार, विनिंग टीम है, हाँ हल्ला तो करते हैं चेयरिंग नहीं हो रही। स्मेल दे दो स्मेल भूख लगी सर इनको बस दा मौका छो जबरदस्त अटॅक होतो पे 4 पॉइंट आउट हो बस दा